welcome to your English class. How are you children? I hope you are fit and fine. So children, we will start today's English class with a discussion of the password. Our password for today is protect. It is a doing word or action word. हिंदी में हम इसे कह सकते हैं, इसका अर्थ हो सकता है सुरक्षा देना या सुरक्षा करना. In English, it can be to keep somebody or something safe. किसी चीज को या किसी पर्सन को सेफ रखना, बचाना, सुरक्षित रखना. In other words, it can be to protect from harm. हानि से बचाना, तो वो अपने आप सुरक्षा देना या सुरक्षा करना हो जाएगा. So now I want to tell you that I have picked this word from the EVS chapter that we are going to start from today, chapter number 8, house we live in. So I want to tell you that its sentence can be framed like that: a house protect us from heat, cold, rain, wild animals and thieves. एक घर हमें इन सब से सुरक्षा देता है, प्रोटेक्ट करता है वेदर कंडीशन से, वाइल्ड एनिमल से और थीफ से. और इट कैन बी लाइक दैट वी शुड प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट. हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, सेफ रखना है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इन अवर इंग्लिश क्लास, children, we will do question answers of lesson number 3, I promise. So we have 4 question answers. We will do all the 4 question answers in today's class itself. After the question answers of lesson number 3, we will revise for upcoming test that is scheduled on 21st August, test of make sentences of lesson number 2, the fly. So we will do revision for that test content also. Now first of all we will start with question answers. So children, today we are going to write question answers of lesson number 3, I promise. So take out your English reader notebooks, open a new page, and on that new page you will write all the details like classwork, today's date that is 18th August. In the first line you will write number of the chapter or lesson, that is lesson number 3. In the second line you will write name of the lesson, that is I promise. In the third line you will write the heading like question answers. This is the short form of question answers. And from the fourth line you will start writing question number 1. So question number 1 is, what was written on the signboard in the park? पार्क में जो साइन बोर्ड था उस पर क्या लिखा हुआ था? So do you remember children? There was a park near Lisa's house. लीजा के घर के पास एक पार्क था और लीजा वहां जाती थी. फ्लावर्स थे पार्क में एज यूजुअल, बहुत कलरफुल फ्लावर्स थे और लीजा बास्केट लेकर जाती थी और वो फ्लावर्स को पिक या प्लक करके घर ले आती थी. सो लीजा विजिट करती थी पार्क पर, वहां साइन बोर्ड भी था. क्या लीजा साइन बोर्ड को नहीं देखती थी? यस, वो देखती थी. बट लीजा हैड दैट बैड हैबिट, वो उसकी बुरी आदत थी. सो व्हाट वाज रिटन ऑन द साइन बोर्ड इन द पार्क? पार्क के साइन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? आंसर इज डू नॉट प्लक फ्लावर्स. फ्लावर्स को प्लक नहीं करना है, ये लिखा हुआ था. सो साइन बोर्ड पर एज यू नो कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकती हैं. सो क्लियरली रिटन था वहां पर पार्क में साइन बोर्ड पर कि डू नॉट प्लक फ्लावर्स. आफ्टर राइटिंग आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 you will leave a line so that our work looks presentable and nice. Then we will start question answer number 2. Why was the fairy sad? Do you remember कि लीजा एक दिन गार्डन में जाती है, तब वो देखती है कि पूरा गार्डन ब्राउन हो गया है. लीव्स, ट्रीज, फ्लावर्स, ग्रास सब ब्राउन कलर की है. तभी वो एक आवाज सुनती है. वहाँ एक फेरी होती है, परी होती है. अब वो परी भी सैड लुकिंग थी. शी वॉज नॉट स्माइलिंग एज यूजुअल. जो परियां हैं वो स्माइल करती हैं, हम ऐसा अपनी स्टोरीज में सुनते हैं या देखते हैं. बट जो फेरी थी वहां पर वो सैड लुकिंग थी, उदास दिखाई दे रही थी. वो क्यों उदास थी? Why was the fairy sad? फेरी क्यों उदास थी? आंसर इज बिकॉज ऑल द फ्लावर्स इन द पार्क हैड टर्न ब्राउन. क्योंकि जो सारे फूल थे पार्क में वो कैसे हो गए थे? ब्राउन में बदल गए थे, ब्राउन रंग में बदल गए थे या ब्राउन हो गए थे. सो व्हाई वाज द फेरी सैड? Answer is because all the flowers in the park had
टर्न ब्राउन, क्योंकि सारे फ्लावर्स थे जो पार्क में वो ब्राउन हो गए थे, इसलिए वो फेरी उदास थी। अब फेरी तो उदास थी बट लीजा भी उदास हो गई। लीजा वॉज अफ्रेड ऑफ दैट सीन, उस सीन से लीजा भी डर गई और उदास हो गई थी। So children, after writing the answer of question number 2, again you will leave a line and then we will write question number 3. What did Lisa promise? Lisa ने क्या promise किया? Do you remember? आपको याद होगा children कि लीजा ने promise किया था फेरी को। जब फेरी ने कहा कि ये तो गार्डन जो ब्राउन इसलिए हुआ है क्योंकि तुम फ्लावर्स प्लक करती हो, तुम्हें अच्छे लगते हैं फ्लावर्स, तो बाकी लोग भी आते हैं इन्हें देखने, उन्हें भी तो अच्छे लगते हैं। सो देन लीजा रियलाइज्ड हर मिस्टेक, तब लीजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और तब ये प्रॉमिस उसने फेरी को दिया कि वो क्या नहीं करेगी। आंसर इज लीजा प्रॉमिस्ड नेवर टू प्लक फ्लावर्स अगेन। लीजा ने प्रॉमिस किया कि वो कभी भी, नेवर मीन्स कभी भी नहीं जो होता है दैट इज कॉल्ड नेवर। लीजा ने प्रॉमिस किया कि कभी भी वो फ्लावर्स को प्लक नहीं करेगी, फिर से वो कभी भी फ्लावर्स को प्लक नहीं करेगी, ये प्रॉमिस लीजा ने फेरी को दिया। सो व्हाट डिड लीजा प्रॉमिस? आंसर इज लीजा प्रॉमिस्ड नेवर टू प्लक फ्लावर्स अगेन। सो ये प्रॉमिस तो हम भी कर सकते हैं चिल्ड्रन, कि हम कभी भी फ्लावर्स नहीं प्लक करेंगे। इधर द फ्लावर्स आर इन योर गार्डन, आपके जो घर के गार्डन में है या लॉन में है या आउटसाइड में भी कहीं है, पार्क में है, तो यू विल नॉट प्लक फ्लावर्स। आफ्टर राइटिंग इट्स आंसर अगेन वी विल लीव अ लाइन एंड देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड लीजा एंड हर मदर सी इन द गार्डन द नेक्स्ट डे? लीजा और लीजा की मदर ने गार्डन में अगले दिन क्या देखा? सो एज यू नो कि लीजा वाज हैविंग अ ड्रीम, लीजा को सपना आया था कि उसने फ्लावर्स प्लक किए हैं। उसको ये रियलाइजेशन तो था कि वो कुछ गलत करती है, फ्लावर्स प्लक नहीं करने चाहिए, बट उसको हैबिट थी। सो रियलाइजेशन तो था लीजा को कि वो फ्लावर्स प्लक करती है। तो एक दिन वो पार्क में गई, वो सारे फ्लावर्स, ट्रीज, ग्रास सब ब्राउन हो गए। तब फेरी ने उसे बताया, वहाँ एक फेरी थी, कि तुम प्रॉमिस करो कि फिर से फ्लावर्स को प्लक नहीं करोगी, क्योंकि लीजा रो रही थी, मुझे ऐसा गार्डन नहीं चाहिए। शी वॉज अफ्रेड ऑफ दैट सीन कि सारा जो गार्डन है वो ब्राउन हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। देन फेरी ने उसे समझाया कि अगर तुम प्रॉमिस दो कि फ्लावर्स को प्लक नहीं करोगी, तब ये वापस वैसा हो सकता है। तब लीजा ने फेरी को प्रॉमिस दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, हम जब डिस्कस कर रहे थे स्टोरी कि मदर है वो जो उठा रहे थे लीजा को कि सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग, गेट अप, लेट्स गो टू द पार्क। मदर वाज सेइंग कि चलो पार्क में चलते हैं, वो लोग यूजुअली जाते होंगे। सो वहाँ वो देखती है लीजा, तो उसको गार्डन वैसा ही फुल ऑफ प्रिटी फ्लावर्स दिखता है। सो दे सॉ मैनी प्रिटी फ्लावर्स, उन्होंने बहुत से प्रिटी फ्लावर्स देखे। प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल। दे किसके लिए यूज हुआ है? मदर एंड लीजा। लीजा एंड हर मदर, उन दोनों के लिए दे यूज किया गया है, दिस इज द प्रोनाउन। उन्होंने पार्क में प्रिटी फ्लावर्स देखे, क्योंकि वैसा कुछ भी नहीं था, बट लीजा को शायद ड्रीम ही आया था ये सब, बट लीजा ने उस ड्रीम से भी एक लेसन लिया, एक सबक लिया कि वो फिर से फ्लावर्स को प्लक नहीं करेगी। सो वी had 4 question answer for this chapter number 3, I promise. So children, as you know that we have done the notebook work and the book work of chapter number 3, I promise. Now children, yesterday I gave you the homework, English homework actually, that you have to learn make sentences of lesson number 2, the fly. So we will do revision for the make sentences, जो कि टेस्ट कंटेंट है, हमारा अपकमिंग टेस्ट है। इट्स टेस्ट इज ऑन 21st August. So we will revise the make sentences of lesson number 2 now. Now we are going to revise make sentences of lesson number 2, the fly. Its test is scheduled on 21st August. 21st August को इसका टेस्ट होगा। We have 4
मेक सेंटेंसेस क्वेश्चंस कि हमें ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं 4 जिनसे हमें सेंटेंस फ्रेम करना है. आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस. आप अपने सेंटेंसेस भी फ्रेम कर सकते हैं, बट दे शुड बी करेक्ट. वो सही होने चाहिए. सो फर्स्ट वर्ड दैट इज गिवन टू फ्रेम सेंटेंस इज शाइनी. शाइनी मीन्स चमकीला. द बटरफ्लाई हैज़ शाइनी विंग्स. बटरफ्लाई के चमकीले पंख हैं. आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द गर्ल हैज़ शाइनी हेयर, द फेरी हैज़ शाइनी हेयर, द फेरी हैज़ अ शाइनी स्टिक इन हर हैंड. इस तरह से भी आप फ्रेम कर सकते हैं. एट नंबर 2 स्प्रेड. स्प्रेड मतलब फैलाना, रब करना कुछ भी. टॉम स्प्रेड द जैम ऑन हिज टोस्ट. टॉम ने अपने टोस्ट पर जैम को स्प्रेड किया. हम बटर को भी स्प्रेड करते हैं, चीज़ को भी स्प्रेड करते हैं, चीज़ स्प्रेड को भी, हनी भी स्प्रेड कर सकते हैं, मार्मलेड या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हम स्प्रेड करते हैं टोस्ट पर. तो टॉम ने अपने टोस्ट पर जैम को स्प्रेड किया. एट नंबर 3 गेट अप. गेट अप मतलब उठ जाना. रूही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. रूही सुबह जल्दी उठ जाती है. एट नंबर 4 जंप्ड. ये जंप का पास्ट टेंस है. जंप मतलब कूदना और जंप्ड मतलब कूदा. सो द मंकी जंप डाउन फ्रॉम द ट्री. जो बंदर है वो पेड़ से नीचे कूदा. आप अपने सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. द बॉय जंप डाउन फ्रॉम द बेंच और डेस्क. इस तरह से भी हो सकता है, कुछ भी आप फ्रेम कर सकते हैं. सो वी हैव ओनली 4 वर्ड्स टू फ्रेम सेंटेंसेस. फ्रेम सेंटेंस करने के लिए हमारे पास 4 वर्ड्स हैं. इट्स टेस्ट इज शेड्यूल्ड ऑन 21 अगस्त. सो चिल्ड्रन डू प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट वेल. अपने टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए. और इट इज़ मैंडेटरी टू गिव टेस्ट ऑलवेज. हमेशा टेस्ट देना है. कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट हो आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है. कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ सर्कमस्टांसिस या मदर पेरेंट्स वर्किंग हैं तो लेट हो सकता है, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, बट टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें. So that's all for our English class today, children. We will meet in our next English class. Till then, bye bye. Take care.